हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस. The 8085 can perform the arithmetic operations such as addition, subtraction, increment and decrement. We have seen all the instructions related to the arithmetic operations, and also we have discussed about the addition operation with the help of some examples. Then we discussed about the subtraction operation, and we know that the 8085 microprocessor performs the subtraction operation with the help of 2's complement method. And how does 8085 performs the subtraction? With the help of 2's complement method, we have seen with the help of an example. Now we are going to see the next example. The example is, write a program to do the following. First step is, load the number 30H in register B and 39H in register C. Second step is, subtract 39H from 30H. And in the third step, display the answer at the port 1. तो ये एग्जांपल है जिसमें ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम लिखना है. तो फर्स्ट स्टेप इज लोड द नंबर 30H in register B and 39H in register C. Then what instruction can be used here? If we want to load the number 30H in register B, then which instruction can be used? Load the number 30H in register B is the operation related with the data transfer. So the data transfer instruction, one of the data transfer instructions will be used here, and since the data which is to be loaded in the register B is directly mentioned, so we can use the instruction MVI B, 30H. So when this instruction MVI B, 30H will be executed, then the 30H, this operand, will be loaded into the register B. Okay. Now we have to load the 39H in register C. Then same instruction can be used because the same task is to be performed. Difference is the operand is different and the register is different. So we can use the same instruction MVI R, 8-bit data, that is, in place of R we will use register C, and the operand is 39H. So the next instruction will be MVI C, 39H. तो ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से क्या टास्क परफॉर्म होगा? 30H जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर बी में लोड हो जाएगा, और सेकेंड इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? When the second instruction will be executed, then 39H will be loaded into the register C. So first task is completed with the help of these two instructions. The second task is, or second step is, subtract 39H from 30H. So 39H to be subtracted from 30H. We know that either in addition operation or in subtraction operation, one of the operands should be in the accumulator. और यहाँ पे हम subtraction की बात कर रहे हैं, तो subtraction operation में क्या होता है कि दोनों ऑपरेंड्स में से जिन दो ऑपरेंड्स पर subtraction operation को परफॉर्म करना है, उन दोनों ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होगा, और वो कौन सा ऑपरेंड होगा? जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 39H फ्रॉम 30H. तो हम लोग 30H को एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे. सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी मूव
and 30H is the content of register B, because in the first instruction 30H has been loaded in the register B. So we will use the instruction move A comma B. By using the instruction move A comma B, what will happen, 30H will be loaded into the accumulator. 30H जो है वो accumulator में लोड हो जाएगा. अभी तक 30H जो है accumulator में लोड हुआ है, इसका मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो ऑपरेंड accumulator में लोड हो चुका है. ओके, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है? In the program in the step 2 it is mentioned subtract 39H from 30H. तो अब 39 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 39H जो है वो रजिस्टर C का कंटेंट है, तो we can use the instruction sub C. When the instruction sub C will be executed, then what will happen? The contents of register C, that is 39H, will be subtracted from the contents of accumulator, that is 30H. In this way, when the instruction sub C will be executed, 39H will be subtracted from 30H. Now the last step is display the answer at port 1. जो भी आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में जो भी आंसर आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, और उस एक्यूमुलेटर में जो भी आंसर है, जो भी रिजल्ट है, उसको आउटपुट उसको पोर्ट 1 पर डिस्प्ले कराने के लिए, जो कि एक आउटपुट पोर्ट है, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं? सो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन आउट 8-बिट पोर्ट एड्रेस. तो यहाँ पर पोर्ट एड्रेस में मेंशन किया है पोर्ट 1, तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन पोर्ट 1. पोर्ट 1 का जो भी एड्रेस होगा that will be mentioned here. So the instruction will be out port 1. In this way the result will be displayed at the port 1. Okay, तो इस तरह से ये प्रोग्राम हम लिख सकते हैं इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो जिस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही उसी को हम यहाँ फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं. तो जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर मेमोरी का एड्रेस लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में. सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द मशीन कोड इन हेक्साडेसिमल. थर्ड कॉलम is used to represent the 8085 mnemonics और इसमें ऑपकोड लिखा हुआ है, और फोर्थ कॉलम में ऑपरेंड लिखा हुआ है, और फिफ्थ कॉलम जो इसमें कमेंट्स लिखे हुए हैं कि किस इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है और रजिस्टर का कंटेंट क्या होगा. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने क्या यूज किया था? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVI B, 30H, जो कि एक 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. तो MVI B, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. We can also see here with the help of this figure, this is 2 बाइट इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट बाइट यहाँ पर इस एड्रेस पर स्टोर हुआ है, सेकेंड बाइट मेमोरी में इस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, और फर्स्ट बाइट जो है वो ऑपकोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड बाइट जो है वो ऑपरेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. In this way MVI B, 30H is the 2 byte instruction, and when the instruction MVI B, 30H will be executed, what will happen? The minuend will be loaded in the register B. Minuend will be loaded in the register B. Minuend का मतलब क्या हुआ? minuend का मतलब हुआ जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर तो B का कंटेंट हो जाएगा 30. यहाँ हम देख सकते हैं B का जो कंटेंट है वो 30 हो गया. ठीक, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. देन द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज MVI C, 39H. The second instruction is MVI C, 39H. Again, this is the 2 byte instruction. The first byte represents the opcode, and the second byte represents the operand, that is 39.
and this is 2 byte instructions. This will take 2 locations in memories to store, and when this instruction will be executed, then what will happen, the 39H 39 which is subtrahend, that is loaded in the register C. यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये MVI C, 39H एग्जीक्यूट होगा इंस्ट्रक्शन, तब C का कंटेंट क्या हो जाएगा 39H. Then what is the next instruction? The next instruction is move A, B. Move A, B. तो move A, B है थर्ड इंस्ट्रक्शन जो कि 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. वी हैव डिस्कस्ड actually MVI B, 30H, MVI C, 39H and move A, B. These are the data transfer instructions. We have discussed these instructions about in the data transfer operations. So move A, B is 1 byte instruction जो कि इसका opcode यहाँ पर दिया हुआ है. When this instruction move A, B will be executed, then what will happen? The contents of B, register B will be loaded into the accumulator. And what is the contents of register B? That is 30H. It means 30H will be loaded into the accumulator. So here we can see the contents of accumulator is 30H. The next instruction is sub C. Sub C. So this is sub C, and sub C is also 1 byte instruction which is arithmetic instruction. इसका opcode 91 है. And when this instruction will be executed sub C, then the contents of register C, that is 39H, will be subtracted from the contents of accumulator, that is 30H. And the subtraction operation will be performed with the help of 2's complement method. Processor performs the subtraction operation with the help of 2's complement method. So this subtraction operation will be executed with the help of 2's complement method, जो कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं. देखिए इसमें जो minuend है रजिस्टर B में 30H, जिसको हम लोग ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में मूव कर चुके हैं, तो 30H में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है 39H को. तो यहाँ पर 30H में से 39H को सब्ट्रैक्ट करना है. तो प्रोसेसर इसके लिए मतलब जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराएंगे तब ये परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन 2's complement मेथड की हेल्प से. तो 2's complement मेथड में क्या होगा कि 39 का पहले हम लोग 2's complement फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 39 का जो भी 2's complement आएगा वो 30 से ऐड कर देंगे. इस तरह से प्रोसेसर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द 2's complement ऑफ 39H. तो इन द फर्स्ट स्टेप 39 जो कि हेक्साडेसिमल में है उसको पहले बाइनरी में लिखते हैं. तो 39 can be represented in binary as 0011 which is 3 and 1001 which is 9. Now what will be the 1's complement of 39H? So 1 complement of 39H can be find out as 1 is substituted from 0 and 0 is substituted from 1. So 1 will be 0 here and 0 will be 1. इस तरह से 1's complement find out करते हैं. तो 1's complement जो है 1100 and 0110, ये 39 का 1's complement आ गया. अब 2's complement निकालने के लिए क्या करते हैं, 1's complement में 01 को ऐड करते हैं. तो 01 का पहले बाइनरी यहाँ मेंशन कर लिया हमने. 01 का बाइनरी होगा 0000 and 0001. अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, मतलब 39 जो कि 39 के 1's complement में 1 ऐड करेंगे तो 2's complement फाइंड आउट होगा. तो इनको हमने ऐड किया 0 + 1 that will be 1, 1 + 0 that will be 1, 1 + 0 will be 1, 0 + 0 will be 0, 0 + 0 will be 0, 0 + 0 will be 0, 1 + 0 will be 1 and 1 + 0 will be 1. In this way 2's complement of 39H is written here. Now
जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट मिला है 39 का, उसको 30 से अगर ऐड कर दें तो 30 ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. सो in the last step 30h will be added to 2's complement of 39h, and this is the 2's complement of 39h. In this 30h will be added. So first of all write the binary of 30h. 30 को हम लोग बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं 0011 एंड 0000. अब इनको ऐड कर लेते हैं. किसको ऐड करेंगे? 39 के 2's कॉम्प्लीमेंट को और 30 को, इन दोनों को ऐड करना है. तो ऐड करने से क्या होगा? 1 + 0 will be 1, then 1 + 0 will be again 1, 1 + 0 will be 1, 0 + 0 will be 0, 0 + 1 will be 1, 0 + 1 will be 1, 1 + 0 will be 1, and again 1 + 0 will be 1. And don't forget the last step, that is complement the carry flag. तो अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है ऐड करते समय. इसका मतलब कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 है. और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? कैरी फ्लैग को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो इट इज 1. तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है 1 1 1 1 0 1 1 1. तो ये जो रिजल्ट आया है F7H, दिस इज 2's complement of दिस नंबर. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर डेसिमल में जो मैग्नीट्यूड क्या आता? 09 आता. तो ये जो 09 है उसका कॉम्प्लीमेंट है F7. ओके, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली. अब ये कैसे पता चल रहा है कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट है? सो दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरी फ्लैग. यहाँ कैरी फ्लैग जो कि सब्ट्रैक्शन में बोरो फ्लैग की तरह यूज किया जाता है. तो इससे ये सेट है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो आंसर आया है वो 2's कॉम्प्लीमेंट में है. ओके, तो फ्लैग स्टेटस का क्या? फ्लैग जो स्टेटस है, डिफरेंट फ्लैग से क्या स्टेटस होंगे? साइन फ्लैग इज 1 बिकॉज द D7 बिट इज 1. जीरो फ्लैग इज 0 और रीसेट बिकॉज द रिजल्ट इज नॉट 0, and carry flag is set. Okay, in this way the subtraction operation is performed by microprocessor with the help of 2's complement method. And subtraction operation हमने डिस्कस कर लिया. तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. उस रिजल्ट को पोर्ट 1 पर डिस्प्ले कराने के लिए आउट पोर्ट 1 इंस्ट्रक्शन यूज होगा, जो कि 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. फर्स्ट बाइट विल बी ऑपरेंड एंड सेकेंड बाइट विल बी द 8-bit पोर्ट एड्रेस, एंड एट लास्ट द इंस्ट्रक्शन HLT halt will be executed, that is end of the program. In this way we discussed about the subtraction operation with the help of some examples. तो हमने इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में समझा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस 8085 में जो परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उनमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं वो भी हमने समझा. एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ये कंडीशन है कि दो ऑपरेंड्स में से जो एक ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए. जबकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस की बात करें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेशंस है वो किसी भी रजिस्टर में परफॉर्म किए जा सकते हैं. एज वी नो दैट द instruction format is INR-R or DCR-R, where R represents the register, and register can be any one among the registers B, C, D, E, H, L और accumulator. तो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस हैं वो किसी भी रजिस्टर में परफॉर्म हो सकते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा वो उसी रजिस्टर में रहता है. After the execution of increment or decrement instruction,
the content of that register will be modified and the result will be stored in that particular register which is used in the instruction. और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस में भी जो फ्लैग्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट. ओनली द कैरी फ्लैग इज नॉट अफेक्टेड इवन व्हेन द रिजल्ट इज ग्रेटर देन एफ एफ, then also the carry flag status is not affected in the increment or decrement operation. तो यहाँ पे हमने अभी तक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा. Now let us discuss the logic operations, which is third functional category of the 8085 instruction set, that is logical operations. तो अगर logical operations की बात करें तो the 8085 includes logic functions such as and, or, XOR, not, which is also called as complement operation. So the logic instructions implicitly assume that the accumulator is one of the operands. तो जो लॉजिक ऑपरेशंस है जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो रहा था कि दो ऑपरेंड्स में से जो एक ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होना ही चाहिए क्योंकि चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ही हो सकता है. ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लॉजिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करते समय दो ऑपरेंड्स पर लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा. दो ऑपरेंड्स होंगे जिसमें से एक ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होना चाहिए. तो द फर्स्ट पॉइंट इज it is assumed that the accumulator is one of the operands. Now the carry flag is reset and the instruction CMA is an exception. Okay, तो carry flag जो हमारा reset होता है and zero, parity and sign flags are modified according to the data conditions of the result. carry flag वो तो reset होगा. इसके अलावा जो फ्लैग्स हैं मतलब अगर CMA इंस्ट्रक्शन की बात छोड़ दी जाए तो जो अदर इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए कैरी फ्लैग अदर जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं एक्चुअली उनके लिए कैरी फ्लैग रीसेट होगा. और जो फ्लैग्स हैं इसके अलावा जीरो पैरिटी फ्लैग एंड साइन फ्लैग्स that flags will be modified according to the data conditions of the result and whatever be the result that result will be placed into the accumulator. Okay, and do not affect the contents of the operand register. जैसे कि एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है और दूसरा किसी रजिस्टर में होगा तो जो दूसरा ऑपरेंड है जो किसी रजिस्टर में प्रेजेंट है तो उस रजिस्टर का कंटेंट मॉडिफाई नहीं होगा. ओनली द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी मॉडिफाइड दैट सिंस द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में. अब हम लोग कुछ लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड इन द 8085 माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशंस. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ANAR. This instruction is ANAR which is related to the logical AND operation. Okay, this instruction is related to the logical AND operation. So what will happen when ANAR is executed? It will logically AND the contents of a register with the contents of accumulator. जब ANAR इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो भी रजिस्टर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है उस रजिस्टर का कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट से लॉजिकली एंड होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर रजिस्टर जो R है दैट मींस रजिस्टर एंड that register can be any one of the registers among B, C, D, E, H, L or accumulator. For example, ANAB. तो जब ANAB इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो भी रजिस्टर B का कंटेंट है वो रजिस्टर A के कंटेंट से उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा.
So the instruction ANA B, this is 1 byte instruction. Okay, this instruction is 1 byte instruction. The next instruction is ANI 8 bit. The meaning of instruction is 8 bit data is logically ANDed with the contents of accumulator. जो भी 8 bit data इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है वो डेटा एक्यूमुलेटर के कंटेंट से लॉजिकली एंड ऑपरेशन उन दोनों में परफॉर्म होगा एंड दैट 8 bit data can be any one of the data in the ranging from 00 to FF 00 से FF के बीच में इसके रेंज में हम किसी भी एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हैं 8 bit डेटा के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कंसीडर किया है 2F, तो ANI 2F. तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये जो 2F जो कि डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पर, ये 2F एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स से लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन दोनों के बीच में. ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इज FF. Let us consider that the contents of accumulator is FFH and यहाँ पर डेटा में जो और दूसरा ऑपरेंड जो दिया है वो क्या है 2F. तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ANI 2F तो क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पहले बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया जाए. तो FF कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नंबर सिस्टम एज 1 1 1 1 1 1 1 1 and 2F in the binary number system can be represented as 0 0 1 0 and 1 1 1 1. अब इस पर अगर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो 1 और 1 को जब एंड करते हैं तो 1 आता है, 1 और फिर 1 और 1 को एंड करने पर 1, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा. 1 0 का एंड करने पर 0 आएगा, अगेन 1 1 का एंड करने पर 1 आएगा, 1 0 विल बी 0 एंड 1 0 का एंड 0 आएगा. तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 2F. तो ये जो रिजल्ट आया 2F, दिस विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. ओके, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. एंड ANI 8 bit is the 2 bytes instruction. The length of this instruction is 2 bytes. Now the next instruction is ANAM. Meaning of instruction is meaning of the instruction ANAM is logically AND the contents of memory with contents of accumulator and the address of memory is in HL register. तो मेमोरी का मतलब ये हुआ कि मेमोरी का वो लोकेशन जिसको HL रजिस्टर पेयर एड्रेस कर रहा है. तो उस मेमोरी के एड्रेस पर जो भी कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट से उन दोनों में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. फॉर एग्जांपल ANAM उसका एग्जांपल भी यही हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ORAR. It logically OR the contents of a register with contents of the accumulator. For example ORAE. यहाँ पर R जो है वो BCD HL या accumulator में से कोई भी रजिस्टर हो सकता है. So when the instruction ORAE will be executed, then the contents of register E and the accumulator जो दोनों contents हैं उनमें लॉजिकल OR ऑपरेशन परफॉर्म होगा. Then the next instruction is ORI 8 bit. For example ORI 3FH. It logically OR 8 bit data with the contents of accumulator. तो जब ORI 3FH इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो accumulator का जो भी कंटेंट है और जो 3F डेटा दिया हुआ है इन दोनों में लॉजिकल OR ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो रिजल्ट होगा वो accumulator में स्टोर होगा. Then the next instruction is ORAM. Example is same ORAM and logically OR the contents of memory
with contents of accumulator, the address of memory is in the HL register pair. ORAM का मीनिंग हुआ कि HL रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहा है उस लोकेशन पर जो भी कंटेंट है और एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है दोनों के बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. So here we discussed about some logical instructions. In the next lecture the remaining logical instructions will be discussed and we will see the logical operations with the help of some examples. Thank you.